Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss the PYQ of pediatrics. So the question that question already मैंने आपसे पूछा था in the comment box. So let's find the answer of this question. So the question is, a 1-year-old child girl is brought by the mother to the CHC clinic with complaints of fever, inability to drink or breastfeed, and cough for more than 7 days. According to IMNCI guidelines, which of the following is not considered a general danger sign? A. Fever. B. Cough lasting more than 7 days. C. Inability to drink or breastfeed. D. Unconscious and unable to breastfeed. So देखो, इन IMNCI guidelines बेसिकली हमारा 3 कॉलम्स मैंने आपको बताया था. फर्स्ट हमारा था we have to look for danger sign, and then we have to assess for symptoms. So basically हमें symptoms assess करने हैं, and then we have to assess for like nutritional status, assess for the immunization status, assess for the other feeding problems. So ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया हो गया. एंड अकॉर्डिंग टू डैट हम चाइल्ड को तीन में क्लासीफाई करते हैं, वेदर इट इज बिलोंग्स टू रेड जोन और येलो जोन, है ना. सो रेड जोन मीन्स की इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड है, आपको चाइल्ड को रेफर करना होगा, ठीक है. येलो मतलब कि यू कैन ट्रीट एट ओपीडी लेवल, एंड द ग्रीन मीन्स की यू कैन ट्रीट एट द होम, ठीक है. सो ये हमारा बेसिकली था. सो इन डेंजर साइड बेसिकली हम 4 चीजें देखते हैं. लुक फॉर कन्वर्जन, whether the child is lethargic or unconscious, whether the child is able to drink or feed or breastfeed, मतलब कि drink और breastfeed, and the fourth is the vomiting. तो ये 4 signs देखते हैं basically. So they are saying fever, cough lasting more than 7 days. So fever हमारा हो गया, एंड कफ हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गया, डायरिया हो गया, ईयर प्रॉब्लम्स हो गया. ये सारा हमारा सिम्टम्स के अंदर आता है, ठीक है ना. सो ए एंड बी हमारा क्या है, सिम्टम्स में आ गया. सो ए एंड बी आंसर नहीं है. सी है इनएबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड. तो ये बेसिकली ये हमारा डेंजर साइन में होता है. सो इनएबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड इज comes under the general danger sign. D is unconscious and unable to breastfeed, again it comes under the general danger sign. तो C and D तो basically नहीं है, because the question is asking not. So not पे या तो हमारा फीवर होगा, या तो हमारा कफ लास्टिंग मोर देन 7 डेज होगा. तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, ठीक है. सो यू कैन गिव, मतलब ये तो बेसिकली हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है. तो मे भी हो सकता है कि जो ऑप्शंस है वो थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएटिंग है, बट या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा, ठीक है. सो इन द एग्जाम इफ यू फाइंड दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस कि ए भी है बी भी है, दोनों फीवर एंड कफ दोनों दे रखा, तो आई कैन से कि आप बी को करेक्ट आंसर को, बी द कफ लास्टिंग मोर देन 7 डेज विल नॉट कंसीडर एज अ जनरल डेंजर साइन, ठीक है ना. फीवर में भी हम उसको लुक देख सकते हैं, बट कफ को हम नहीं इंक्लूड कर सकते फॉर मोर देन 7 डेज. तो बी हमारा थोड़ा काइंड ऑफ राइट टाइप ऑफ आंसर होगा. बेसिकली माई एम इज टू tell you about the key, what is the danger sign, what is the symptoms that we are assessing in the IMNCI guidelines, and what all the parameters we are looking for. So you should know, ठीक है. Okay, moving to the next question, that is good attachment. Very important question. Many times this question has repeated. Sometimes they just give some picture and like 4 pictures दे देते हैं, and they ask you which one is correct method, which one is incorrect method. Sometimes in the kind of sentence के form में पूछ लेते हैं. So you should know these questions. So good attachment of infant to mother's breast during breastfeeding includes all of the following except. So except मतलब वही गलत होगा. So A, chin of the infant touches mother's breast. So this is the correct method. Chin of the baby should touch the mother's breast. This is the correct method. B, upper areola is visible more than the lower part. It is also the correct method. It should be. And C, lower lip of the infant is turned inward. No, it's not inward, it's outward. It outward or everted होना चाहिए. So the lower lip of infant is turned outward or everted होना चाहिए. So C हमारा गलत है. D है mouth of infant is open wide. तो mouth of the infant should be open wide होना चाहिए. Lower areola should be upper areola should be visible more, and the chin of the infant should touches to the mother's breast, and D is the lower lip of infant is turned outward. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है.
Moving to the next question, that is, a child with suspected cerebral palsy is brought to the hospital. Which history is most important for the nurse to ask? है ना. So चाइल्ड किसका है, सेरिब्रल पाल्सी का है. ठीक है. सो ए है बर्थ हिस्ट्री एंड पेरिनेटल इवेंट्स, बी इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, सी डाइटरी हिस्ट्री, डी है स्कूल परफॉर्मेंस हिस्ट्री. सो यू नो वेरी वेल सेरिब्रल पैल्सी. सो सेरिब्रल पैल्सी का जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, डेट इज बेसिकली हाइपोक्सिक इंजरी टू द ब्रेन, है ना. हाइपोक्सिक इंजरी टू द ब्रेन. तो हो सकता है ड्यूरिंग चाइल्ड, या तो चाइल्ड प्रीटर्म बॉर्न हुआ होगा, या तो चाइल्ड पोस्टर्म बॉर्न हुआ होगा, एंड हो सकता है कि चाइल्ड को हाइपोक्सिक इंजरी हुई होगी, है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना. चाइल्ड को सीजर आया होगा ड्यूरिंग डिलीवरी, कन्वर्जन हो सकता है ना. सो वी हैव टू आस्क द मदर की ड्यूरिंग बर्थ चाइल्ड रोया था कि नहीं रोया था, चाइल्ड को सीजर आए थे कि नहीं आए थे, डिलीवरी कैसी थी, वेदर इट इज नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी, या फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो डिलीवरी है वो डिले हुआ था कि नहीं होता, सो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे कि नहीं होते. सो वी हैव टू आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑफ कोर्स द आंसर इज ए, बर्थ हिस्ट्री एंड पेरीनेटल इवेंट्स वी हैव टू आस्क. इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, डाइटरी हिस्ट्री, स्कूल परफॉर्मेंस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इन सेरिब्रल पाल्सी, बिकॉज सेरिब्रल पाल्सी का जो मोस्ट कॉमन कॉज बेसिकली जो होता है, दैट इज द काइंड ऑफ हाइपोक्सिक इंजरी टू द ब्रेन, है ना. सो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये. ठीक है. Moving to the next questions, that is, a newborn is delivered with severe respiratory distress syndrome. Okay. And a congenital diaphragmatic hernia. You know what is congenital diaphragmatic hernia? So let's suppose this is the diaphragm, right? This is the diaphragm and ये हमारा lungs है ना. ये हमारा lungs है, दो छोटे छोटे क्यूट से lungs है, and यहाँ पे हमारा पूरा GIT सिस्टम है. ठीक है. So in congenital diaphragmatic hernia में क्या होगा कि there is congenitally since birth there is a hole in the diaphragm. So let's suppose यहाँ पे hole है, तो because of that hole क्या होगा कि जो GIT है वो कहाँ है, from this hole कहाँ चला जाएगा, into the lungs के पास चला जाएगा. ठीक है. सो ऑफ कोर्स चाइल्ड को क्या होगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा. ठीक है. सो द बेबी इज साइनोटिक. सो ऑफ कोर्स बेबी साइनोटिक होगा एंड स्ट्रगलिंग टू ब्रेथ, ऑफ कोर्स. ठीक है. Which of the following action should the priority intervention? So this is the question. मतलब the student are saying कि प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं ना. सो दैट्स व्हाई आई सेड यू कि प्लीज थोड़े बहुत तो एमसीक्यू आप मॉसबी से करके जाओ, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस किस तरीके से हमें प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ की टेक्निक है या फिर कोई काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना कि कोई फॉर्मूला है जो आप प्रायोरिटी को फाइंड कर सकते हो. It's all need your practice and the knowledge of the concepts. ठीक है. So priority intervention में A, advise the parent to take the baby home and return to OPD. तो ये वाला तो ऑप्शन अगर कोई पढ़ के भी नहीं जाएगा स्टिल बोलेगा, क्योंकि चाइल्ड इज साइनोटिक, स्ट्रगलिंग टू ब्रेथ, एंड आप बोलोगे मदर को कि अपने बच्चे को घर लेके जाओ, मतलब कि आप पूरे पागल हो ना. सो ये गलत हो गया. बी, प्रिपेयर फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ऑफ कोर्स दिस कैन बी. ठीक है. अदर ऑप्शंस पढ़ते हैं. सी, प्रोवाइड बैग मास्क वेंटिलेशन. ठीक है. डी, स्टेबलाइज द न्यू बॉर्न एंड अरेंज फॉर सर्जिकल करेक्शन. तो यहाँ ये तो सही बोला उन्होंने कि हमें चाइल्ड को स्टेबलाइज करना है एंड देन वी हैव टू ऑफ कोर्स सर्जिकल करेक्शन करना है, तभी चाइल्ड प्रॉपर आगे ग्रोथ हो पाएगा. बट बिफोर स्टेबलाइजिंग हमारा प्रायोरिटी क्या है? क्या बेबी स्ट्रगलिंग टू ब्रेथ कर रहा है, साइनोटिक है, एंड आप सर्जरी के लिए क्या बोलते हैं, सर्जरी के लिए आप बेबी को पोस्टेड कर दोगे? नहीं ना, पहले उससे पहले चाइल्ड को स्टेबलाइज करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज, द ऑप्शन इज आल्सो सेइंग स्टेबलाइज द चाइल्ड, है ना. तो डी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. तो हमारे पास या तो बी ऑप्शन से, डेट इज की प्रिपेयर फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और प्रोवाइड बैग मास्क वेंटिलेशन, या तो हमारा बी होगा या तो फिर हमारा सी होगा. बट इफ यू आर गिविंग द बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, है ना, सो आप एम्बू से बैग एंड मास्क कर रहे हो, तो क्या होगा, ये जो एयर है इस लंग्स में भी जाएगा ना. तो ये जो यहाँ पे जो डायफ्राम
इससे जो हमारा GIT सिस्टम यहाँ पे पूरा इंटेस्टाइन वगैरह आ गया तो ये भी इन्फ्लेट होने लग जाएगा, एंड वो हमें नहीं करना। वी हैव टू बेसिकली इन्फ्लेट दैट लंग्स, है ना। सो बेसिकली इन दैट कंडीशन हमें क्या करना है, चाइल्ड को इंट्यूबेट करना है, सिंपली वी हैव टू इंट्यूबेट, है ना। सो हमारे पास B ऑप्शन था, C ऑप्शन था, बट द करेक्ट आंसर क्या होगा, B इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वी हैव टू इंट्यूबेट द चिल्ड्रेन, वी हैव टू एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना होगा, हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के लंग्स को इन्फ्लेट करना होगा, चाइल्ड को वेंटिलेटर पे रखना होगा, एंड देन वी हैव टू स्टेबलाइज द चाइल्ड। आफ्टर स्टेबलाइजिंग हमें चाइल्ड को सर्जिकल करेक्शन करवाना होगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Moving to the next question, that is a nurse is assessing a 2-year-old child who has fast breathing. Which is the best? Describe fast breathing. So this is very simple question, you know very well. In IMNCI आपने न्यूमोनिया अगर पढ़ा होगा उसमें हमारा फास्ट ब्रीदिंग का क्लासिफिकेशन है, that is up to 2 month। मैंने आपको तीन चीजें बस याद कर लो, 40, 50, 60। फर्स्ट आपको ये याद करना है, एंड सेकेंड आपको याद क्या करना है, अप टू 2 मंथ, देन 2 मंथ टू 12 मंथ। ओके, सो माई राइटिंग इज नॉट दैट मच गुड, तो आप बोलोगे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर 1 ईयर, सो लाइक आफ्टर लाइक 1 to 5 ईयर, ऐसे याद कर लो, है ना। सो अप टू 2 मंथ, 2 मंथ टू 12 मंथ, अप टू 5 ईयर्स, सो 40, 50, 60। सो मोर देन 40 को बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग इन अप टू 2 मंथ वाले बच्चे में, 2 मंथ से 12 मंथ मीन्स कि अप टू 1 ईयर वाले बच्चे में मोर देन 50 होगा तो फास्ट ब्रीदिंग बोलेंगे, एंड अप 1 to 5 ईयर्स वाले बच्चे में अगर मोर देन सॉरी इट्स 60, 50 एंड 40, है ना, गलती, सॉरी, 60, 50 एंड 40। सो अप टू 2 मंथ होगा तो हम मोर देन 60 होगा तो हम बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है। एंड इफ द 2 मंथ फ्रॉम 2 मंथ टू 12 मंथ, इफ द रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 50, then it is known as fast breathing, and from 1 to 5 years, if the respiratory rate is more than 40, then it is known as फास्ट ब्रीदिंग। सो द चाइल्ड कितने साल का है, 2 साल का है, तो 2 साल के बच्चों में कौन से पे बोलेंगे, मोर देन 40 ब्रेथ पर मिनट, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ओके, ठीक है। सो आपको बेसिकली ये up to 2 month, 2 month to 12 month, and then 1 to 5 years, 60, 50, 40 ये याद करना है, ठीक है, ओके। Moving to the next question, that is a newborn present with tachypnea, grunting and nasal flaring immediately after birth. The doctor plans to administer surfactant therapy. What is the route of administration? A. Intravenous, B. Oral, C. Endotracheal, and D. Intramuscular. And I think everybody knows about the answer of that question. So I want कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. And that's all about today. Thank you so much. All the best.